Hello 11th class. In last class we were doing the third chapter of history. Uh, we did till here and today we will continue from here social hierarchies. Let us understand back from the details now and try and get a sense of the social structure of empire. What is the social structures? Hierarchies means it is a level, we can say, where the peoples belong to the each other in which way the people are belonging to each others. So that is basically social hierarchies. Social hierarchies also presents in the every organization. If we talk about schools, companies, any organization, Tacitus described the leading social group of the early empire as follows: senators, leading members of the equestrian class, the respectable sections of the people, those attached to the great houses, the unkempt lower classes, who, he tells us, were addicted to the circus and theatrical display, and finally the slaves. So there is a social hierarchy. First, the peoples who comes, we call them equestrian classes. Those are the respectable peoples of the society, the respectable sections of the peoples, those attached to the great houses. After that, there is another class, that is the unkempt lower class, who tell us are addicted to the circus and theatrical display. And finally, there were slaves. In early 3rd century, when Senate numbered roughly 1000, approximately half of all senators still come from the Italian family. uh, when early थर्ड सेंचुरी के स्टार्टिंग में जब 1000 सीनेटर्स थे, उस वक्त भी जो ज़्यादातर जो हाफ से ज़्यादा सीनेटर्स थे वो आते थे इटालियंस एरिस्टोक्रेटिक फैमिली या जो रिच फैमिली थी, एज वी कैन से इक्वेस्टेरियन क्लास. By late empire, which start with reign of Constantine I in the early part of the 4th century, the first two groups mentioned by Tacitus, the senators and equitus, had merged into a unified and expanded aristocracy, and at least half of all families were Africans and Eastern origins. तो फोर्थ सेंचुरी के स्टार्ट होते होते तक जो हमारा जो टू ग्रुप्स थे, हम बात कर रहे थे सीनेटर्स की एंड द इक्वेस्ट्रियन क्लास, वो फोर्थ सेंचुरी के आते आते आपस में मर्ज हो गए थे और एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास बना रही थी, जो पीपल्स में ज़्यादातर बिलोंग करते थे अफ्रीकन्स और ईस्टर्न, मतलब वो लोग अफ्रीकन और ईस्टर्न ओरिजिन थे मेनली वो पीपल. This late Roman aristocracy was enormously wealthy but in many ways less powerful than the purely military elites who came almost entirely from non aristocratic backgrounds. जो ये लेट एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, मतलब जो फोर्थ सेंचुरी के स्टार्टिंग में बननी स्टार्ट हुई थी एरिस्टोक्रेट फैमिली, उनके पास वेल्थ तो थी लेकिन उनके पास इतनी पावर नहीं थी. जो मिलिट्री एलिट्स होते हैं, जो मिलिट्री में सबसे ज़्यादा ऊपर वाली पोस्ट पे जो लोग होते थे, हम कह सकते हैं मिलिट्री एलिट्स, इनके पास जो स्किल्स होती थी उनसे, हालांकि वो नॉन एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड से आते थे लेकिन उनके पास फिर भी उन लोगों से ज़्यादा पावर होती थी. The middle class now consist of the considerably mass of persons connected with the imperial service in the bureaucracy. और जो मिडिल क्लास लोग थे वो भी ब्यूरोक्रेसी से धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे थे, अपनी सर्विसेज दे रहे थे and army, but also the more prosperous merchants and farmers of whom there were the many in the eastern province. लेकिन इसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा अमीर प्रोस्परस मर्चेंट थे, ट्रेडर थे, फार्मर थे, वो भी ऐसा नहीं था कि वो मतलब सर्विसेज में जा रहे थे, वो अपना मतलब खुद का काम कर रहे थे जो ईस्टर्न प्रोविंसेस थे उनमें. टैकिटस डिस्क्राइब द रिस्पेक्टेबल्स मिडिल क्लास एज द क्लाइंट्स ऑफ द ग्रेट सैनिटोरियल हाउसेस. टैकिटस ने बताया था कि जो रिस्पेक्टेड मिडिल क्लास है एज अ क्लाइंट्स ऑफ द, वो मतलब ग्रेट क्लाइंट्स हैं सैनिटोरियल हाउसेस के. Now it was chiefly government services and dependent on the state. और ये मतलब अगर आप ब्यूरोक्रेटी में हो तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, गवर्नमेंट के लिए सर्विस दे रहे हो, and dependence on the state and sustains many of these family. Below them were the vast mass of lower classes known collectively as
लार्ज हिमिलोयसी। जो लोअर क्लास जो लोअर क्लास पीपल थे उनको हम कलेक्टिवली कह सकते थे हिमिलियर्स। दे comprised of the rural labor force of which many were permanently employed on the large estates। जो बेसिकली जो रूरल लेबर्स थे, जो गांव में काम करने वाले छोटे छोटे काम करने वाली लेबर थी, जो लेबर का काम करती थी, वो लोग इसमें आते थे। वर्कर इन द इंडस्ट्रियल, जो वर्कर इंडस्ट्री में काम करते थे, माइनिंग में काम करते थे, माइनिंग वाले एरिया में। माइग्रेंट वर्कर्स, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम करने के लिए जाते थे। हु सपोर्ट मच ऑफ द लेबर फॉर द ग्रेन एंड ओलिव हार्वेस्ट एंड फॉर द बिल्डिंग इंडस्ट्री। सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिसन, मतलब उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे सेल्फ आर्टिसंस के पास उस वक्त, या ना ही उनकी आर्ट से इतनी कमाई होती थी कि वो मतलब अपर क्लास या मिडिल क्लास में जा सके, तो वो लोअर क्लास में आते थे। It was said were better fed than the wage laborers, a large mass of casual labor, especially in the big city, and of course the many thousands of slaves that were still found all over the western empires in the particulars। तो हम देख सकते हैं कि मतलब कैसे हमारी जो सोशल हायरार्की थी कैसे बटी हुई थी। जो लोअर क्लास थी उसमें भी काफ़ी लोग थे, जो कैजुअल लेबर्स थे, जो हम कह सकते हैं आर्टिजन्स पीपल्स थे, ठीक है, माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो मतलब वर्कर्स थे जो काम करते थे इंडस्ट्री में, माइनिंग में। उसके बाद जो मिडिल क्लास के लोग थे, उसके बाद अपर क्लास के लोग थे। द इक्विटीज़ का मतलब होता है द नाइट्स और द हॉर्समैन्स वर ट्रेडिशनली द सेकंड मोस्ट पावरफुल एंड द वेल्थी ग्रुप। मतलब जो सीनेट्स के बाद जो सेकंड ग्रुप आता सबसे पावरफुल होता है, वो उस रोमन एम्पायर में होता था, उसको हम कहते थे इक्विटस। Originally, they were families whose property qualified them to serve in cavalry. Hence, the names like senators, most knights were land owners. But unlike senators, many of them were ship owners, traders, and bankers that involved in the business activity। मतलब ये काफ़ी वेल्थी पीपल होते थे, पावरफुल पीपल होते थे। उनके जो उनकी फैमिली थी उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी होती थी। लाइक सीनेटर्स मोस्ट नाइट्स वर लैंड ओनर्स, इनको हम नाइट्स भी बोलते थे। उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी होती थी, एरिया शिप ओनर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, बैंकर होते थे, मतलब बिजनेस एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे एज कम्पेयर टू सीनेटर्स। One writer of the early 5th century, the historian Olympiodorus, who was also ambassador, tells us the aristocracy based in the city of Rome drew annual income up to the 4,000 IBS of gold from their estate, not counting the produce they consumed directly। एक राइटर के अनुसार जो अर्ली 5th सेंचुरी में था, हिस्टोरियंस ओलम्पिडियोर्स, उसको जो एज एम्बेसडर भी था, उसको कहते थे कि अरिस्टोक्रेट बेस्ड सिटी ऑफ रोम थी। मतलब वहाँ से एनुअल इनकम आती थी वो लगभग 4,000 IBS ऑफ गोल्ड। मतलब 4,000 IBS एक मतलब उस वक्त अभी भी IBS होती है एक मतलब वेट तोलने का एक मतलब अलग अलग जो हमारे इंडेक्स होते हैं उनमें से एक होता है। नॉट काउंटिंग द प्रोड्यूस द कंज्यूम्ड इट। मतलब इतना वो डायरेक्टली मतलब इतनी एनुअल इनकम को कंज्यूम करते थे। द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द लेट एम्पायर ब्रोक विद द सिल्वर बेस्ड करेंसी ऑफ द फर्स्ट 3 century बिकॉज द स्पेनिश सिल्वर माइंस आर एग्जॉस्ट। द गवर्नमेंट ran out of the sufficient stock of the metal to support a stable coinage in silver। जो हमारा मॉनेटरी सिस्टम था वो ब्रोक हो गया था, जो सिल्वर पे डिपेंड करता था, सिल्वर बेस्ड करेंसी पे फर्स्ट 3 century में। उसके पीछे मेन कारण ये था कि जो सिल्वर था, स्पेनिश सिल्वर माइंस थी, उनका जो सिल्वर था एग्जॉस्ट ख़त्म हो गया था, और जो गवर्नमेंट है उसके पास जो मेटल का स्टॉक था वो भी ख़त्म होना स्टार्ट हो गया था। कॉन्स्टेंटाइन फाउंड द न्यू मॉनेटरी सिस्टम ऑन द गोल्ड। कॉन्स्टेंटाइन ने एक नया मॉनेटरी सिस्टम बनाया जो गोल्ड पे बेस्ड था। एंड देयर वर द वास्ट अमाउंट ऑफ दिस इन द सर्कुलेशन थ्रू द लेट एंटिक्विटी। और गोल्ड की पहले से ही मतलब सर्कुलेशन थी जो आम जनता थी उसमें पहले से, क्योंकि पहले भी गोल्ड का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था। द लेट रोमन ब्यूरोक्रेसी बोथ द हायर एंड द मिडल echelons was the comparatively affluent because it drew the bulk of its slavery in salary in gold and invested much of this buying of the assets like land। जो रोमन ब्यूरोक्रेसी थी, हायर चाहे मिडिल क्लास लेवल के जो भी थे, मतलब काफ़ी एफिलेंट लोग थे, बिकॉज वो करते थे मतलब जो उनकी सैलरी होती थी वो गोल्ड में आती थी, और उस गोल्ड को वो इन्वेस्ट करते थे लैंड में।
देर वॉज ऑफ कोर्स आल्सो ए ग्रेट डील ऑफ करप्शंस, और करप्शन में से काफ़ी ज़्यादा था, स्पेशली इन द जुडिशियल सिस्टम में एंड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री सप्लाई। मतलब जैसे भी कोई जस्टिस सिस्टम था उसमें काफ़ी उस वक्त करप्शन था, और जो उनका जो मिलिट्री सप्लाई का मतलब जो भी इनके जो हम कह सकते हैं हथियार वगैरह सप्लाई होते थे, जो भी मतलब सैनिक थे उनको, उनमें भी मतलब काफ़ी धोखाधड़ी होती थी, काफ़ी करप्शन था। The extortion of the high bureaucracy and the greed of the provincial governors were probable। तो मतलब ये साफ साफ दिखता था, एक्सटॉर्शन होता था जो हायर ब्यूरोक्रेसी में, मतलब उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता था जो हायर ब्यूरोक्रेसी पे होते थे, जो उनके गवर्नर होते थे किसी भी प्रोविंस का, उनके द्वारा, ताकि मतलब करप्शन को आसानी से किया जा सके। But government intervened rapidly to curb this form of corruption. We only know about them in the first place because of the law that tried to put end of them। लेकिन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी बार प्रयत्न किया कि मतलब इन सब का जो करप्शन है इसको ख़त्म किया जाए। And because historians and the other members of the intelligence denounce such practice, the element of the criticisms is remarkable features of the classical words। क्रिटिसिज्म करना मतलब होता है किसी के बारे में उसकी गलतियों को बताना, और उन गलतियों को बताना, उन्हें सुधारने के लिए कुछ सलाह देना, और उसमें मतलब काफ़ी रिमार्केबल फीचर था क्लासिकल वर्ड का, उस समय के वर्ड का। द रोमन स्टेट वाज एन ऑटोटेरेनियन रिजीम, एक ऑटोटेरेनियन रिजीम था, मतलब एक व्यक्ति की वहाँ पे चलती थी। इन अदर वर्ड्स डिसेंट्स वाज रेयरली टॉलरेटेड एंड गवर्नमेंट यूजली रिस्पॉन्डेड टू द प्रोटेस्ट विद द वॉयलेंट। तो कहने का मतलब है कि अगर कुछ गलती भी होता था, जो डिसेंट लोग होते थे उनको परेशान किया जाता था, और मान लो आप सरकार के खिलाफ बोलते तो आपको वॉयलेंटली मतलब आपको हैंडल किया जाएगा, मारा पीटा जाएगा। स्पेशली इन द सिटी ऑफ द ईस्ट वेयर पीपल्स वर ऑफ्टन फियरलेस इन मेकिंग फन ऑफ एम्परर्स। इट स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ द रोमन लॉ हैज मर्ज बाय द 4th सेंचुरी। फिर भी 4th सेंचुरी तक आते आते एक लॉ बनना, मतलब एक स्ट्रॉन्ग लॉ बनना स्टार्ट हो गया था। एक ट्रेडिशंस मतलब एक रोमन लॉ, एक ट्रेडिशन ऑफ रोमन लॉ बनना मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन बनना स्टार्ट हो गया था उसके बारे में। एंड दिस एक्टेड एज अ ब्रेक एंड इवन मोस्ट फियरसम emperors were not free to whatever they liked, and the law was actively used to protect the civil rights। और एम्प्रस के पास ये अधिकार नहीं होता था कि वो जो चाहे वो कर सकते थे, और वहाँ पे अब तो कानून भी था जो सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। दैट इज़ वाई इन द लेटर 4th सेंचुरी, इसी वजह से 4th सेंचुरी के लास्ट तक इट वॉज पॉसिबल पावरफुल बिशप्स लाइक द एम्ब्रोज to confront equally powerful emperors when they were excessively harsh to repressive in their handling of civilian populations। तो इसी वजह से लेट 4th सेंचुरी के आते मतलब एंड तक जो बिशप लाइक एम्ब्रोस थे, टू कन्फ्रंट इक्वली पावरफुल एम्पर, मतलब इतनी पावर आ गई थी उनके पास भी कि वो मतलब एम्पर के पावर एम्पर था उस वक्त, उसके मतलब उनकी पावर को कन्फ्रंट कर सकता था वो। when were they excessively harsh or repressive in the handling of civilian populations। तो मतलब कन्फ्रंट मतलब वो ऐसा था कि मतलब जो एम्पर ने कुछ गलत काम कर दिया है तो वो बिशप था एम्ब्रोस, वो उसको भी मतलब उसके लिए भी मतलब बोल सकता था कि मतलब ऐसा करना गलत है। इनकम्स ऑफ द रोमन एरिस्टोक्रेट अर्ली 5th सेंचुरी। each each of the great house of the Roman contained within itself everything which the medium-sized city could hold: a hippodrome, a fora, temples, fountains, different kind of baths. Many of the Roman households received an income of the 4,000 pounds of the gold per year from their properties, not including grain, wine, and the other produce, which, if sold, would have amounted to the one third of the income in the gold। The income of the household of a Roman's second class was 1,000 to 1,500 pounds of the gold। अगर हम देखें तो रोमन एम्पायर में उस वक्त जो रिच एरिस्टोक्रेट फैमिली थी उनकी इनकम कितनी होती थी। हमने पहले ही बात की कि 4,000 IBS मीन्स पाउंड्स ऑफ गोल्ड वो मतलब अपनी प्रॉपर्टी से कमाते थे। जो मिडिल क्लास के लोग होते थे वो मतलब 1,000 से लेकर 1,500 के बीच में पाउंड्स ऑफ गोल्ड कमाते थे एनुअली। तो मतलब उनके पास बहुत सारी सुविधाएं थी, लाइक बहुत बड़े फाउंटेन्स थे, टेम्पल्स थे, डिफरेंट काइंड ऑफ बाथ, बड़े बड़े पब्लिक बाथ्स थे। तो मतलब इतने पैसे का मतलब वो बिल्कुल ऐसे दिखाते थे कि उनके पास पैसा था।
And that's all for this class, and we will try to complete this chapter in the next class. Thank you, 11th class.